we start structure of chromosome. You know what is chromosome? Chromosome is the filamentous body present within the nucleus of the cell. न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अपन ने देखा था कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. Chromosome is made up of DNA, histone and non-histone protein, and chromosome present within the nucleus of the cell. Chromosome number is constant species to species. हर स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है और वो कभी चेंज होता नहीं. ठीक है. Then chromosome responsible for chromosome is made up of DNA and histone and non-histone protein. Chromosome responsible for replication. Chromosome able to the ability of chromosome to replicate means chromosome form same number. Chromosome able to form new chromosome. Heredity. Chromosome responsible to transfer the character from parent to offsprings. Therefore, chromosome responsible for heredity. Chromosome also responsible for variation. Means some changes occur between parent and offspring. That variation also responsible on parent. Chromosome responsible for evolution. Evolution means that changes occur from generation to generation. That changes occur due to chromosomes. Try to understand. Chromosome is the filamentous body present within the nucleus of the chromosome. Chromosome made up of DNA and histone and non-histone protein. Chromosome responsible for replication means formation of new chromosome. Chromosome responsible for heredity means transfer of body character from parent to offsprings. Chromosome responsible for variation and evolution. Then shape and size of chromosome is fixed species to species. In human being, the length of chromosome is 0.1 to 33 micrometer in length, and thickness of chromosome is 0.2 to 2 micrometer in length. Thickness 0.2 to 2 micrometer in thickness. Sister chromatid. You know, chromosome is made up of two chromatid. Chromosome made up of two chromatid and two chromatid connected to each other by centromere. You know, this one is chromatid. This chromatid and two chromatid connected to each other by centromere. The two chromatid which is present in same chromosome called sister chromatid. These both chromatid called sister chromatid. Sister chromatid. Then chromonimeta. Chromosome is made up of DNA and histone and non-histone protein. Both are protein, histone protein and non-histone protein. DNA present within the chromosome called chromonimeta. The DNA which is present within the chromosome called chromonimeta. What is meant by chromonimeta? The DNA which is present within the chromosome called chromonimeta. Then chromomere, histone protein that is present within the chromosome. Histone protein that is present within the chromosome called chromomere. Histone protein, the structure of chromosome like this. Chromatid
in the DNA there is a histone protein. The structure DNA which is present within the chromatid or chromosome called chromonimeta. This one is called chromonimeta. DNA is called chromonimeta, and histone protein present within the chromosome called chromomere. Understand? Then what is ploidy? What is ploidy? Ploidy means degree of repetition of basic chromosome number present within the cell. What is ploidy number? What is ploidy? The means of ploidy is degree of repetition of primary basic number of the chromosome present in the cell. सेल में जो भी क्रोमोसोम होगा उसका डिग्री ऑफ रिपीटेशन जो होगा that is called ploidy. What is ploidy? Degree of repetition of primary basic number of the chromosome present within the cell. Ploidy are of two types, euploidy and aneuploidy. Euploidy means exact multiple of primary basic number of chromosome. Exact multiple of primary basic number of chromosome. Euploidy are of three types. Monoploidy means haploid. Diploidy means diploid. Polyploidy means triploid, tetraploid and so on. Euploidy are of three types. Monoploidy means haploid set of chromosome. Diploidy means diploid means 2n. Haploid means single n. Haploid set of chromosome. Diploid means two set of chromosome. Polyploidy means triploid, tetraploid and so on. What is ploidy? Ploidy is the degree of repetition of primary basic number of the chromosome present in cell. Ploidy are of two types, euploidy and aneuploidy. Euploidy means exact multiple of primary basic number of chromosome. क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मल्टीपल जब नंबर होगा उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी आर ऑफ थ्री टाइप्स, मोनोप्लॉइडी, diploidy and polyploidy. Monoploidy means haploid set of chromosome. Diploidy means diploid number of chromosome. Polyploidy means triploid, tetraploid and so on. Aneuploidy means addition and deletion of one or more chromosomes. अगर उसमें क्रोमोसोम का नंबर ऐड होता है या तो डिलीट होता है उसको बोलते हैं एनोप्लॉइडी. या तो क्रोमोसोम नंबर ऐड होगा या तो जो भी बेसिक नंबर है क्रोमोसोम का अगर उसमें कुछ एडिशन होता है तब भी एनोप्लॉइडी. अगर कुछ डिलीशन होता है, डिलीट होता है तब भी क्या बोलेंगे अपन? एनोप्लॉइडी. एनोप्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी. हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर. हाइपोप्लॉइडी मीन्स लेस नंबर ऑफ अब जैसे डिप्लॉइड अपना क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है, अगर उसमें कोई एक क्रोमोसोम नंबर लेस हो जाता है कॉल्ड मोनोसोमी. अगर उसमें से दो क्रोमोसोम माइनस हो जाते हैं, डिप्लॉइड नंबर में से दो क्रोमोसोम माइनस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नलिसोमी. समझ में आया आपको? हाइपो मीन्स लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जो डिप्लॉइड नंबर है अपना 46, अगर उससे कम हो जाते हैं क्रोमोसोम्स तो उसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी. हाइपोप्लॉइडी में अगर एक क्रोमोसोम माइनस होता है तो मोनोसोमी. अगर दोनों उसमें से दो क्रोमोसोम माइनस होते हैं तो उसको बोलेंगे नलिसोमी. देन हाइपरप्लॉइडी मीन्स एडिशन ऑफ क्रोमोसोम. जो भी डिप्लॉइड नंबर अपना है 46 उसमें अगर कुछ क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन हाइपरप्लॉइडी. हाइपरप्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी. इन ट्राइसोमी addition of one chromosome in diploid number, and in tetraploid addition of two chromosome in diploid number. You know 2n means diploid number. In diploid number two chromosomes are added, extra two chromosomes are added called tetrasomy.
समझ में आया आप लोगों को? प्लॉइडी का क्या हुआ मीनिंग? व्हाट इज प्लॉइडी? डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल. इट इज ऑफ टू टाइप, यूप्लॉइडी एंड एनिप्लॉइडी. यूप्लॉइडी का एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक नंबर ऑफ जो भी क्रोमोसोम होगा उसका एग्जैक्ट मल्टीपल होगा तो उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी के 3 टाइप है, मोनोप्लॉइडी है, डायप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी है. मोनोप्लॉइडी मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डायप्लॉइडी मीन्स डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी मीन्स ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड, सो ऑन. एनिप्लॉइडी मीन्स इसमें या तो क्रोमोसोम का एडिशन होगा या तो क्रोमोसोम डिलीट होंगे, कम होंगे क्रोमोसोम, या तो ऐड होंगे या तो कम होंगे. इसके 2 टाइप्स होते हैं, हैपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी. हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम का डिलीशन होता है, माने डिलीट होते हैं क्रोमोसोम, और हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम का नंबर ऐड होता है, मीन्स क्रोमोसोम बढ़ेंगे. हाइपोप्लॉइडी आर ऑफ 2 टाइप, मोनोसोमी एंड नलीसोमी. इन मोनोसोमी 1 डिप्लॉइड नंबर में से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी. अगर डिप्लॉइड नंबर में से 2 क्रोमोसोम नंबर माइनस हो जाते हैं उसको बोलेंगे नलीसोमी. देन हाइपरप्लॉइडी में यहाँ पे क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है. डिप्लॉइड नंबर में अगर कोई क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी. अगर डिप्लॉइड नंबर में कोई क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं तो बोलेंगे टेट्रासोमी. देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टीलोमियर, secondary constriction, primary constriction, then again secondary constriction. This one is also secondary constriction and satellite. Structure of chromosome consists of telomere, then secondary constriction, primary constriction, again secondary constriction and satellite. You know chromosome made up of 2 chromatid. आपको मालूम है कि क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मेडअप होता है और 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर. किससे कनेक्ट है? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर को ही और में क्या नाम दिया गया है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एंड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर. विद इन द क्रोमोसोम देयर इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. This one is first secondary constriction. This one is secondary constriction. Some secondary constriction called nucleolar organizer. Secondary constriction को ही अपन बोलेंगे nucleolar organizer because secondary constriction able to form nucleolus. Secondary constriction able to form nucleolus. You know, within the nucleus, nucleolus is present. And that nucleolus is formed by secondary constriction. और nucleolus किससे बनता है? Secondary constriction. और secondary constriction कहाँ पे है? क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है जो nucleolus को बनाता है. ठीक है? Then one end of the chromosome called satellite, that is also called sat body or sat body or satellite. One end of the chromosome called satellite and other end of the chromosome called telomere. Other end of the chromosome called telomere. टीलोमियर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि टीलोमियर इस क्रोमोसोम को किसी और क्रोमोसोम से अटैच होने देता नहीं है. मतलब जो ये टीलोमियर है वो दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होने, इस क्रोमोसोम को किसी और क्रोमोसोम से अटैच होने देगा नहीं. क्योंकि जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो क्रोमोसोम बहुत लॉन्ग हो जाएगा. ठीक है? तो ये टीलोमियर की प्रॉपर्टी है कि वो किसी दूसरे क्रोमोसोम को इस क्रोमोसोम से ऐड होने देता नहीं है. दैट इज कॉल्ड टीलोमियर. ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है. तो अपन ने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखा अपन ने. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्या देखा अपन ने कि टीलोमियर है, उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, सैटेलाइट है और भी एक उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है. मैंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बारे में क्या बताया आपको कि 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन.
सेकेंडरी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर। देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोलस को, इसलिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को अपन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मैंने बताया आपको कि जो डीएनए क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उसको ही बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलेंगे? क्रोमोनिमेटा। और जो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। ये ब्लैक कलर के मैंने प्रोटीन्स दिखाया है और ये डीएनए दिखाया है और ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में जो ब्लैक कलर के प्रोटीन्स है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, और उसी हिस्टोन प्रोटीन का नाम है क्रोमोमियर। ठीक है, समझ में आप लोगों को क्रोमोमियर। उसके बाद मैंने आपको सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में भी बताया कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं और वो दोनों क्रोमैटिड को, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। आपको अंडरस्टैंड हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम? क्या क्या देखा अपन ने क्रोमोसोम में? क्रोमोसोम एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, धागे जैसा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज में। आपको मैंने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाया है, उसमें बताया था कि क्रोमोसोम टोटली विजिबल इन मेटाफेज। मेटाफेज में वो टोटली क्लियर विजिबल होता है। ठीक है। क्रोमोसोम हर स्पीसीज में उसका नंबर कांस्टेंट होता है, उसका क्रोमोसोम का नंबर कभी चेंज होता नहीं, स्पीसीज टू स्पीसीज वो कांस्टेंट है। शेप और स्ट्रक्चर भी हर स्पीसीज का अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे अपना लेंथ अगर देखा क्रोमोसोम का तो कितना है? 0.1233 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 0.222 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है उसकी, क्रोमोसोम की ह्यूमन बीइंग में। बाकी स्पीसीज में अलग होती है इसकी। ठीक है। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन मीन्स क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया कि डीएनए एबल टू फॉर्म न्यू डीएनए एंड विद इन द क्रोमोसोम डीएनए इज प्रेजेंट, देयरफॉर इट आल्सो फॉर्म न्यू क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम भी नया क्रोमोसोम बना सकता है, मीन्स उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है। क्रोमोसोम ट्रांसफर कर सकता है हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो भी क्रोमोसोम उसी के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए क्रोमोसोम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। देन प्लॉडी के बारे में बताया आपको मैंने। प्लॉडी मीन्स व्हाट? प्लॉडी मीन्स डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट विद इन द सेल। मैंने उसके बाद बताया आपको कि प्लॉडी आर ऑफ 2 टाइप, यूप्लॉडी और एनिप्लॉडी बताया। यूप्लॉडी क्या बताया मैंने आपको? एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा उसी को बोलते हैं यूप्लॉडी। यूप्लॉडी के 3 टाइप हो गए, मोनोप्लॉडी, डायप्लॉडी और पॉलीप्लॉडी। मोनोप्लॉडी मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, डायप्लॉडी मीन्स डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉडी मीन्स ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड क्रोमोसोम एंड सो ऑन। एनिप्लॉइडी मीन्स मैंने बताया आपको, या तो क्रोमोसोम ऐड होगा डिप्लॉइड नंबर में, या तो क्रोमोसोम डिलीट होगा। अगर एडिशन होता है तब भी एनिप्लॉइडी, डिलीशन होता है तब भी एनिप्लॉइडी। इसके 2 टाइप हुए, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स 2 टाइप है इसके, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है और नलीसोमी में 2 क्रोमोसोम माइनस हो रहे हैं। ठीक है। हाइपरप्लॉइडी मीन्स क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, हाइपर मीन्स बढ़ रहे हैं क्रोमोसोम। ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है और टेट्रासोमी में 2 क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? ऐड। समझ में आया आप लोगों को? Types of chromosome. You know about chromosome. Chromosome is the filamentous body present within the nucleus of the cell. Then type of the chromosome on the basis of centromere. You know centromere? 2 chromatid chromosome made up of 2 chromatid and 2 chromatid connected to each other by centromere. मैंने आपको बताया था कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं
और 2 क्रोमॅटिड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमियर, म्हणजे पॉइंट ऑफ कनेक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। उसको अपन ने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोला था, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के क्रोमोसोम है। किसके बेस पे? सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम के 4 टाइप है। एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। किसके बेस पे? सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम के कितने टाइप्स है? 4। एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और बाद में है टीलोसेंट्रिक। ऐसे 4 टाइप है। किसके बेस पे? सेंट्रोमियर। व्हाट इज द सेंट्रोमियर? Chromosome made up of 2 chromatid and 2 chromatid connected to each other by centromere. On the basis of centromere, there are 4 types of chromosome: metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Okay. In metacentric, centromere present at the center of the chromosome. In metacentric, chromosome present at the center of the chromosome. Centromere present at the center of chromosome called metacentric. What is meta? Centromere present middle of the chromosome. क्रोमोसोम के जब मिडल में सेंट्रोमियर होता है, सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और ये क्रोमोसोम यहाँ पे दोनों मीन्स नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, दोनों पार्ट क्रोमोसोम के दोनों पार्ट की लेंथ सेम होती है, इसलिए ये क्रोमोसोम अपने को दिखता है वी शेप में। कौन से शेप में दिखेगा? वी शेप। बाद में दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे सेंटर है, सेंटर से थोड़ा ऊपर सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर प्रेजेंट अबाउट द सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, इसलिए अपन ने नाम दिया सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे क्रोमोसोम अपने को एल शेप में दिखता है, मीन्स एक लेंथ, एक जो नीचे का पार्ट है वो लॉन्ग है और ऊपर का पार्ट क्या है? शॉर्ट है। मीन्स अपने को क्रोमोसोम कौन से शेप में दिख रहा है? एल शेप। देन एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स। सेंट्रोमियर कहाँ है? अपेक्स की तरफ, म्हणजे ऊपर की साइड में सेंट्रोमियर है, तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, मीन्स सेंट्रोमियर प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपेक्स। सेंट्रोमियर कहाँ है? अपेक्स की साइड में है, इसको बोला अपन ने एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम दिखता है जे शेप। कैसे दिखेगा? जे शेप, ठीक है। देन टीलोसेंट्रिक, आपको मालूम है कि क्रोमोसोम के टिप पे होता है टीलोमियर। अगर सेंट्रोमियर टीलोमियर के पास में है तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर टू द टीलोमियर, क्योंकि आपको मालूम है क्रोमोसोम के टिप में क्या होता है? टीलोमियर होता है, और टीलोमियर के पास में ही कौन प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने क्या बोला? टीलोसेंट्रिक। और यहाँ पे क्रोमोसोम दिखता है आई शेप या रॉड शेप। क्या दिखता है अपने को? रॉड शेप, आई शेप और रॉड शेप। ओके, ठीक है। तो किसके बेस पे मैंने क्रोमोसोम की 4 टाइप देखा? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर प्रेजेंट